السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی سلمان رشید صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. آپ کو میں نے پھر پریشان کیا. آپ کی مہربانی ہے آرزو. سر آپ تو آرمی میں بھی رہے ہیں. آخر یہ آرمی جو ہے یہ الیکشنز میں کیوں گھسی رہتی ہے ہماری، اور کیوں بار بار ان کے اوپر نام لگتا ہے کہ انہوں نے الیکشن ریزلٹس چینج کر دیے یا انٹرفیئر کرتے ہیں؟ ہمیشہ سے ہی کرتے آئے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب زیادہ ہو گیا ہے؟ نہیں، بھٹو صاحب دیکھیے جو پہلا الیکشن ہوا تھا 1970 کا، وہ یحییٰ خان ڈکٹیٹر تھا اس وقت، اور وہ اس نے تو بڑا صاف ستھرا الیکشن کرایا تھا. یہ کل پرسوں فقیر اجاز الدین صاحب کا جو کالم تھا ڈان کے اندر، اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ کسنجر نے جب یحییٰ نے کہا کہ میں ڈکٹیٹر ہوں، اس نے کہا فار اے ڈکٹیٹر مسٹر پریزیڈنٹ یو ہیلڈ اے لاؤزی الیکشن. یعنی وہ بالکل سادہ اور صاف ستھرا الیکشن تھا. پھر 1977 کے الیکشن صاف ستھرے تھے جس میں بھٹو صاحب ہارے، طاقت میں تھے اور بھٹو صاحب ہار گئے. اس کے بعد ضیاء، میں تو اسے ضیاء مردود ہی کہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے اور کوئی نام نہیں ہے. تو اس کے بعد تو پھر رونق میلہ ہی لگ گیا نا جی. اس کے بعد تو فوج نے کچھ نہیں چھوڑا. لیکن سر کیوں واپس ہم فوج کو واپس بیرکس میں کیوں نہیں بھیج پائے؟ یہ سویلین گورنمنٹ اتنی کمزور کیوں رہی ہمیشہ؟ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور دکھائی دیتی ہیں. یہ بار بار خود آوازیں دیتے ہیں فوج کو کہ آ جاؤ ہمیں بچا لو. اس کا مجھے ویسے میں سیریسلی چونکہ ایک اے پولیٹیکل سا آدمی ہوں نا آرزو، اس کے اوپر میں شاید صحیح بندہ نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کمنٹ کروں، کہ کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں ہے فرینکلی. یہ نہیں کہ میں کسی چیز سے ڈر رہا ہوں. اب 72 سال عمر ہو جائے گی اگلے ہفتے، تو مجھے مار بھی دیں گے تو کیا ہے. ارے نہیں سر، جو کچھ کرنا تھا کر لیا. لیکن میں ڈر کی وجہ سے نہیں، مجھے سیریسلی نہیں پتا کہ فوج کو مطلب بیماری کیا ہے. مطلب ہے تو صحیح، فوج کو نہیں ہے بیچاروں کو. فوجی تو بیچارے بڑے سیدھے سادے ہیں. جرنیلوں کو ہی ہے یہ جو بھی کچھ ہے وہ کرتے ہیں جی. اب ہم کیا، مجھے نہیں اس کی سمجھ. صحیح، مگر بہرحال سر انہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوتا ہوگا جب بھی یہ جرنیل جو ہے یہ پالیٹکس میں گھسے رہتے ہیں. لیکن جو باقی کے گلف کنٹریز ہیں سر، کسی کے پاس آئل ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تیل بھی ختم ہو رہا ہے سعودی عرب وغیرہ کے پاس، تو وہ تھوڑے ماڈرن ہونے چلیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پر ٹورزم بھی شروع کریں گے. ہم جو ہے ہم ماڈرن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہم گلف کنٹریز یو اے ای وغیرہ کی طرح کیوں نہیں ہم آگے بڑھ پا رہے؟ ہم اس لیے نہیں بڑھ پا رہے کہ وہ ہم جسے میں کہتا ہوں نا، یہ کہتے ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ. یہ بالکل ایک مس نومر ہے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ہم ایک انسیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. ہم ایک کانسٹنٹ انسیکیورٹی میں، اوئے اسلام نو خطرہ پی گیا، اوئے پاکستان نو خطرہ پی گیا، اوئے فوج نو خطرہ پی گیا. وہ ہم ہر ویلے اسی کل میں پھنسے رہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہم نے خطرہ ڈال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم ترقی اس لیے نہیں کر سکتے کہ پھر خطرہ سے ہمیں بچانے والی ہماری فوج ہے. اور فوج جو ہے بدقسمتی سے وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ ہم خطروں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، تو ہم نہیں ہو سکیں گے. آپ نے سعودی عرب کی بات کی نا کہ وہ بھی ماڈرن ہونے جا رہے ہیں. یہ میں پرسوں چوتھی کسی ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا، 10 سال تو شاید بہت زیادہ ہیں، ابھی تھوڑے سال کے اندر غیر مسلمان حج والے وہ سارے فرائض انجام دینے آیا کریں گے کہ ہم بھی دیکھیں یہ مسلمان کرتے کیا ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا یہ وہاں پہ وہ ٹورزم اس قسم کا کھلنے جا رہا ہے. مسجد نبوی کے کیا ابھی انہوں نے کسی افرنگی کے لیے کس کے لیے کھولی تھی ابھی چند دن پیچھے؟ سر وہ انڈین یونین منسٹر گئی تھی نا وہاں پر وزٹ کرنے. وہ جو خاتون گئی تھی، بی بی جو گئی تھی، وہ ان کے لیے کھول دی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم ابھی تک 19ویں صدی کے شروع کے سالوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب جاسوس جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو جاسوس ہوتے تھے، وہ جب نقشوں کی وہ میپنگ کرنے کے لیے جاتے تھے شمالی علاقے میں یا کہیں بھی، تو وہ نا ساری چیز ڈسگائز کی ہوئی ہوتی تھی. تو ہم ابھی بھی
जो भी आता है हम उससे प्रूव योर आइडेंटिटी, वो हमें प्रूव योर आइडेंटिटी भी नहीं कहना आता, लेकिन हम उसे अंग्रेज समझते हैं, वो चाहे मेरी तरह का काला ही हो, उसे हम अंग्रेज समझते हैं और हम उससे शक की नज़र से देखते हैं। ये फ़ौज में एक फ़िक्रा मुझे बड़ा पसंद था कि हर बंदे को शक की निगाह से देखना है। वो हमें इतना उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ था फ़ौज के अंदर, मैं शुक्र है कि मेरी ब्रेन ही नहीं थी, मैंने वॉश किथे होना सी, उन्हें किथे वॉश होना सी। तो जिन बेचारों की ब्रेन्स थी थोड़ी बहुत, वो वॉश हो जाती थी और वो फिर पक्के इसी चक्कर में हर किसी को शक की निगाह से देखा करते थे। तो वो हम 70-77 साल से वो शक की निगाह जो है हमारी, वो इतनी पक्की हो गई है कि अब हम मॉडर्नाइज हो नहीं सकते। अब तो कोई हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे और हम कोई ना 4-6 रह जाएं और वो बदकिस्मती से अक्लमंद हों और वो फिर कहें कि अच्छा जी हम नवा पाकिस्तान बनाना है, और इमरान खान वाला नवा पाकिस्तान नहीं, वो कोई 4-6 जो रह जाए ना, वो कोई नवा पाकिस्तान बनाए, तो शायद हम लोग ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारे लिए उम्मीद ना आप रखें। सर वही मुझे याद आ रहा है, मेरे एक दोस्त हैं, वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान तब सही होगा जब पूरा टूट जाए, 4-5 हिस्से हो जाए, कहते हैं टूट भी नहीं रहा, तो इसलिए ठीक नहीं हो पा रहा। तो मगर वही बात आप कह रहे हैं कि पूरा खत्म हो, हम लोग 4-6 कोई रह जाए अक्ल वाले, तो हाँ, मगर वो 4-6 आपको लगता है पाकिस्तान में है 4-6 अक्ल वाले? वो भी नहीं मिलेंगे। फैज साहब भी फौत हो गए, आइए रहमान साहब भी फौत हो गए, हुसैन नकी साहब रह गए हैं, खालिद अहमद साहब रह गए हैं, 2 बंदे रह गए अकल वाले, और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये वो लोग हैं, हुसैन नकी या खालिद अहमद साहब, जो कि अकल भी रखते हैं और सच बोलना भी जानते हैं। हमारे यहाँ और लोग भी हैं अकल वाले, लेकिन वो सच बोलना नहीं जानते। किसी को सच बोलना नहीं आता पाकिस्तान में। सर यहाँ तो सवाल करने की इजाजत नहीं है ना, कहते हैं कोई सवाल, अगर कोई सवाल उठाता है तो उसी को उठा के ले जाते हैं, लेकिन सर क्या एटम बम हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा? आप कह रहे हैं सिक्योरिटी स्टेट है हम, या हमें कोई खतरा हर वक्त जो रहता है, तो वो एटम बम किस लिए बनाया? वो तो हमारे बहुत से पैनलिस्ट आके कहते हैं नहीं हमारे पास तो एटम बम है। उनके अब मैं क्या कहूँ, वो साले जाहिल मुतलिक, हमारे पास एटम बॉम्ब है, हमने अपने एटम बॉम्ब कभी हम उस मोरी में छुपा रहे हैं, कभी हम उस मोरी में छुपा रहे हैं, मोरियां तो पहाड़ों में खोद खोद के उसमें हम अपनी ये कुल्फियां छुपा रहे हैं, और क्या सिक्योरिटी हमें उसने देनी है जी? वो और क्या हम किसी के ऊपर चला सकते हैं? क्या दुनिया हमें चला लेने की इजाजत देगी? क्या हम, अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या हम उसके बाद वजूद हमारा कुछ रह जाएगा? दुनिया हमें छोड़ेगी? सिक्योरिटी? ये हम क्या पागलपन की बातें करते हैं जी, कि एटम बम हमें सिक्योरिटी दे रहा है। अजीब की बातें हैं। सर ये तो कहते हैं ना कि वो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और शेख रशीद साहब कहते हैं हमारे पास पाव पाव के भी हैं, जो हम भारत में फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुस्लिम्स को नहीं मारेंगे, मतलब ये वाला बम भी हमारे पास है जो रिलीजन चेक करेगा। शेख रशीद से बड़ा तो उल्लू का पट्ठा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, एक नहायत अहमक, अनपढ़, जाहिल मुतलिक, मिरासी की औलाद, ये मिरासी कह लें, मिरासी, पता नहीं बाप भी उसका मिरासी था या नहीं, लेकिन वो तो एक अनपढ़ जाहिल मुतलिक की मिरासी है, उसके पास कोई तालीम नहीं है, उसको पाव पाव के बर्फी बेच रहा है साला, कि पाव पाव के पैकेट बना के बर्फी के बेच रहा है। तो ये तो वो हमारे पास जो भी, और फिर कि जी वो और मुसलमान को नहीं मारेंगे एटम, उसको इंडिया को, हिंदू को या सिख को मार देंगे, ये कहाँ की अकल की बात है? ये आप जरा एक कहीं बम फेंक के देख लें, फिर आपके साथ होता क्या है? वो सारी सिक्योरिटी जो है ना, वो गई। सर हमने इंडिया से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, इंडिया के पास जो नंबर है उससे ज्यादा पाकिस्तान ने बना रखे, पैसा हमारे पास है कोई नहीं, सारे तरह हम कटोरे लेके घूमते रहते हैं, बजाय लोगों पे पैसा लगाने के हम ये न्यूक्लियर वेपन्स बना किसके लिए रहे हैं? वो कहते भी यही कि जी हमने रखने के लिए नहीं बनाया। ये मुझे भी आज तक नहीं समझ आई। मैं बहुत सारा काम करता हूँ थरपारकर वगैरह में, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं वहाँ पे जाके स्कूलों की और बच्चों की हालतें देखता हूँ, खुदा की कसम रोने को दिल करता है। वो जो बच्चे हैं वो इतने ब्राइट और इतनी उनमें
प्रॉमिस है और हर बच्चा उस्ताद बनना चाहता है, वो क्योंकि उसने उस्ताद कभी देखा नहीं, पहली दफ़ा बेचारा उस्ताद को देख रहा है। कोई टीचर, वो हर कोई कहता है जी मैंने टीचर बनना है, इतना शौक है उन बच्चों में टीच करने का। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो छोटे-छोटे बच्चे हैं 12-12, 10-10 साल के, तो वो कहते हैं कि जी वो इसलिए ताकि हमारे से आगे आने वाले पढ़ लिख जाएँ। तो मतलब हम बजाय ये बम बनाने के, भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएँगे और हम बम बनाएँगे, अल्लाह के फज़ल-ओ करम से हम आज तक घास ही खा रहे हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे जो हालात होने वाले हैं, आपकी गैस का गर्मियों का बिल आया करेगा 15-20 हज़ार रुपए, सर्दियों का बिल लाख से ऊपर हुआ करेगा गैस का, बिजली का बिल तकरीबन 1.5-2 लाख के लगभग होगा। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके घर में एक ठंडी मशीन लगी हुई है ना, वो अगले साल हमें, मुझे पता है कि 1.5 लाख रुपया भी, इस साल हमारा सबसे हाईएस्ट बिल जो था वो 74,000 रुपए था, और हम 2 मियाँ-बीवी हैं बस खाली, यानी एक मैं और मेरी बीवी और मैं, हमने 74,000 का बिल दिया। अगले साल 1.5 पौने 2 लाख से कम का नहीं होगा। तो हम घास ही खाएँगे ना, घास खाएँगे। तो वो हम बम बनाते जाएँगे और घास खाते जाएँगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और बम के लिए फिर वो लाहौरियों के फ़िक्रे हैं बड़े खूबसूरत। वो यहाँ तो फैमिली चैनल है ना, शगुफ़ा भी देखते हैं, तो वहाँ यहाँ बोला नहीं जा सकता। लेकिन हम बम के साथ फिर वही करेंगे जो लाहौरिये कहते हैं। लेकिन सर घास भी नहीं मिलेगी, जो जिस तरह से हम हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, तो हमने जमीन ही नहीं छोड़ी है। हर जगह रोड जो है वो चौड़ी करते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हर जगह रोड को और ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं। सारे दरख्त काट डाले इन्होंने, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं छोड़ा। मतलब हमारे पास तो हवा साफ सूंघने के लिए नहीं रह जाएगी। हमें ये नहीं समझ आ रही, आप यहाँ, वो हमारे दोस्त थे मसूद हसन, मशहूर कॉलमिस्ट थे, एडवर्टाइजिंग के बंदे थे वैसे तो, उनका एक फ़िक्रा मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आप टारमैक का एक ग्रिड बिछा दें, तारकोल की सड़कों का एक ग्रिड बिछा दें, लेकिन ट्रैफिक इसी तरह रहेगी, क्योंकि किसी को ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, किसी को ये ही नहीं पता कि चलानी कैसे है, बिल्कुल। राइट ऑफ वे किसका है। ये जो चवल किस्म के खड़े होते हैं स्लेटी वर्दियां पहन के, ट्रैफिक वार्डन्स, इन गधों के को खुद नहीं पता कि अगर सड़क पे कोई दाएं से आ रहा है या बाएं से आ रहा है, उसमें ट्रैफिक, उसमें राइट ऑफ वे किसका है, किसने पहले गुजरना है, किसको रुकना चाहिए। ये तो खोते वहां पे खड़े हुए हैं, बस ऐसी। और फिर मतलब कोई किसी चीज में भी तो अब ठीक नहीं हमने छोड़ा। वहां बम बनाएंगे हम और घास खाएंगे, घास खा रहे हैं। सर सारी दुनिया से पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें ये जो मदरसे चल रहे हैं और जो मस्जिदों के चंदे जमा होते हैं, बार बार डोनेशन बॉक्सेस भरे होते हैं, इनसे ले लें तो मेरा ख्याल है कि उल्टा हम किसी को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगी कंट्रीज। ये मस्जिदें बनाना बंद क्यों नहीं करते? हर सेक्टर में, इस्लामाबाद में हर सेक्टर में 2-2, 3-3 मस्जिदें, लोग चाहे अंदर ना हो, लेकिन आपको पता है घर भी सस्ते मिलते हैं, मतलब रेंट भी कम होता है, बेचने में भी लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि पूरा टाइम तो मौलाना साहब लाउड स्पीकर पे कहानियां सुनाते रहते हैं। अच्छा देखिए, मस्जिद बनाने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मस्जिद भरो भी तो सही ना, कोई यकीन रखने वाले लोग भी तो हो ना भाई, जितने बंदे हैं उस हिसाब से मस्जिद बनाएं। तो बिल्कुल। हम नहीं सर, मैं भी यही कह रही हूँ कि मस्जिद बनाना बंद ना करें, लेकिन जितनी बन गई है बस कर दे गई। लाइब्रेरी बनाए, लाइब्रेरी नहीं मिलती इस्लामाबाद में नहीं, आपको, बुक शॉप्स खत्म हो गई हैं, वहां पे हाँ, कबाब टिक्के की दुकानें खुल गई है, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, ना किताबें पढ़ते हैं ना कुछ। तो पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, ये हमारी मेंटल डिके है ना जी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। वो हमारा फखर ये है कि ओ मेरा चाचा जड़ा है ना 6 किलो तिक्के खा जाता एक बैठक के, एक यानी एक बार बैठेगा 6 किलो तिक्के खा जाएगा। और फिर एक पूरा क्रेट 7 अप भी पी लेता है। हमारी अब जो फड़ है ना, वो इस किस्म की हमारी फड़ है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो बहुत यार वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है भाई, बड़ा आलिम इल्म है उसके पास। आलिम अब सिर्फ ना जो कि सो नाम नेहाद एक कोई मौलवी टाइप है ना, उसको हम आलिम समझते हैं। आप यकीन करें आरज़ू कि मेरा भाई भी पढ़ाता है एक यूनिवर्सिटी में, तो एक बार उसकी एक स्टूडेंट अपने मंगेतर को उससे मिलाने के लिए लेके आई, तो वो मंगेतर और स्टूडेंट जो थे ना, वो उसको खाने पे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में ले गए। तो वहाँ पे कुछ लोग मिल गए उस लड़के को,
तो वो वापस आके मेरे भाई से कहता है, डू यू नो दीज आर सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन लाहौर। वो ये नहीं कह रहा कि ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनके पास मतलब इनके साथ बैठ के मजा, वो कह रहा है ये सबसे अमीर लोग हैं। अब हमारी जो क्राइटेरियन है ना हमारे, या क्राइटेरिया जो है मुख्तलिफ, वो ये है कि यार ये अमीर है, ये कितने किलो गोश्त एक वक्त में खा जाता है, और दूसरा जरा और भी जरा फोश और वाहियात है, वो मैं नहीं बोलूंगा, वो भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन सर ये भी है कि मिडिल क्लास हमारे यहाँ तकरीबन खत्म होती चली जा रही है, बल्कि हो ही गई है शायद। और अगर कोई बहुत टाइम तक हमारे, वही जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारे क्राइटेरिया जब डिफरेंट हो गए, बहुत टाइम तक अगर कोई किसी को हम ये देखेंगे वो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है, ना अमेरिका गया है, ना यूरोप गया है, ना दुबई गया है, तो कुछ ऐसा लगता है नाक कट रही है ना, मतलब कुछ बेइज्जती सी होती है कि यार इधर ही बैठे हुए। हाँ, ये आपने सही कहा आयु, बिल्कुल। वही है, तो कहीं जाते ही नहीं, वही ना। ये जो है ना, मेरी बीवी कई बार कह चुकी कि अब हम मिडिल क्लास नहीं रहे, हम हुआ करते थे कभी मिडिल क्लास, अब हम लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, अभी बिल्कुल गरीबों में नहीं आए, इंशाल्लाह अगले साल 1-2 साल में आ जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास में हम से हट गए हैं, लोअर मिडिल क्लास टाइप लोग हैं हम। और वाकई ना तो हम में तपड़ ही नहीं है कि हम इमिग्रेट करें, और दूसरा हम में तपड़ नहीं है कि हम मुल्क से बाहर भी घूमने चले जाएं, बल्कि मुल्क के अंदर भी घूमने कहीं चले जाएं। हम तो सॉल्ट ड्रिंक जब आते हैं तो पेट्रोल का हिसाब करते रहते हैं कि यार कितना पेट्रोल लग गया आने जाने में। तो वो बात सर आपकी पहले सही ये है। बात बड़ी अच्छी समझी जाती थी, वो शरीफ लोग होते थे, जैसे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक इज्जत की बात होती थी। लेकिन अब वही वही चीज पे लोग समझते हैं कि नहीं, दूसरी तरफ जो जाते हैं हर तरफ घूमते रहते हैं, उनकी ज्यादा इज्जत हो रही है। ये चीज भी तो हमारे यहाँ बदल गई है। पहले लोग मॉडर्न भी होते थे सर, मैं देखी थी, या जो मतलब मैंने जो सुना भी और देखा भी, कई जगह के पहले यूरोपियंस जो यहाँ रहते थे, वैसी के ही सही, वो अपने ड्रेसेस पहनती थी, उनकी औरतें स्कर्ट्स वगैरह में लोग घुमा करते थे। भुट्टो साहब के जमाने की भी पिक्चर्स हैं। मगर अब तो बिल्कुल कोई बाहर निकल जाए तो अजीब नजरों से देखते हैं लोग। हाँ, ये भुट्टो तो बहुत पहले की बात है ना, भुट्टो को तो 79 में मार दिया। 81 में जब मैं कराची में रहता था और एक जर्मन फर्म में मैं काम करता था, तो वो अपने जर्मन लोग थे वहाँ पे, तो वो कई बार मुझे भी इनवाइट कर लिया जाता था। वो जो जर्मन लोग थे मुझे भी कहते थे कि भाई हम कल बीच पार्टी कर रहे हैं तो तुम भी आ जाना, और दिन में होती थी और फिर शाम तक चलती रहती थी। कई बार ये होता था शाम को चलती थी, फिर वही बीच हट में ही हम लोग कहीं ना कहीं घुस के सो जाया करते थे, सुबह उठ के फिर चालू हो जाता था काम। तो उनकी बीवियां वो बिकिनीज पहन के, 2 पीस बिकिनीज पहन के, यानी 80 82 83 में, हाँ, वो बीच के ऊपर होती थी। अब तो मेरा ख़्याल है कि कहीं चली जाए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ये मुल्लों ने तो इस्लाम को भी एक अंडे के छिलके जितना नाज़ुक बना दिया है कि वो हर वक़्त खतरे में ही पड़ा रहता है। वही जो मैं कह रहा हूँ, ये इनसिक्योरिटी स्टेट, यहाँ हर चीज़ कोई खतरा है। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो भी अपने बच्चे को स्कूल जब भेजता है तो 2 डाले पीछे 2 डाले आगे लगा के वो भेजता है कि जी वो सारी ड्रामेबाज़ी है। कोई खतरा-खुतरा नहीं है। मगर सर रिलीजन आजकल बहुत बेचा जाता है, रिलीजन बेचने में बड़ा पैसा है। सारे मौलवी कहते हैं जी सादा जिंदगी गुजारो, बस अगली अगली जगह मरने के बाद ही लाइफ है। लेकिन यहाँ वो बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े घरों में घूम रहे होते हैं, और फिर बता रहे होते हैं 72 हो रहे हैं और क्या क्या नौटंकियां चल रही होती हैं। तो ये वाला पाकिस्तान क्यों बनाया हमने? मेरा तो ख्याल है कि ये बनना ही बनना था। ये एक वो नेचुरल उसकी इवोल्यूशन थी। वो जो हमने बनाया, जो जिन्ना ने इस्लामी क्या इस्लामी मुल्क बनाया, या मुसलमान, इस्लामी मुल्क तो जिन्ना का लफ्ज नहीं था, मुसलमानों के लिए एक मुल्क जो बनाया, तो वो तो साल के अंदर अंदर ही जिन्ना को एम्बुलेंस भेजी जिसमें वो कि मर जाए ये साला वहीं पे, दम घुट जाए इसका गर्म एम्बुलेंस के अंदर, और वही हुआ। उसके बाद लियाकत अली जो था, उसने वो जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास की, करारदाद नजरियात जो जी। भी थी, पता नहीं क्या,
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो थी वो उसका तो उसमें फिर ये इस्लामी रियासत बन गया और इस्लामी रियासत की जो इवोल्यूशन थी वो यही होनी थी क्योंकि हमारे पास करने को कुछ और नहीं ना था। हमने तालीम की तरफ गौर किया। आप ये देख लीजिए कि जो वो उसके बाद से हमने एक तो तारीख जितनी भी थी अपनी वो झूठी इजाद करनी शुरू की। तालीम के ऊपर हमने बहुत कम ज़ोर दिया। हमने तालीम का सत्यानाश मारा और ये अभी पिछले 20-25 साल में तो बिल्कुल ही नाश मार के रख दिया ना कि कोई भी जो निकले। अब हमारे यहाँ जो तालीम है वो तो सिर्फ रट्टे के ऊपर बुनियाद है ना उसकी। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग कोई मॉडर्न किस्म की सोच हम आने ही नहीं देते बच्चों के अंदर। तो वो फिर ये नेचुरल इवोल्यूशन थी, ये होना ही था कि फिर मौलवी की ताकत हो। और एमएमए बनी थी मुल्ला मिलिट्री अलायंस नहीं, मजलिस से पता नहीं क्या वो जो पेशावर में जिनकी हुकूमत थी जी जी उस जी मनहूस के ज़माने में, ये क्या उसका नाम था मुशर्रफ के। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस तो 1947 में ही बन गई थी। उन्होंने कहा कि भाई हम आपस में हमारी गठजोड़ रहेगी तो सही रहेगा, हुण मैं लै ही ना जान इस गल उत्ते। ये भी मैं डरता हूँ क्योंकि जुल्म बड़ा करते हैं, मारते बहुत हैं। वो सर ये मगर अब थोड़ा डर गए, थोड़ा बैकफुट पे चले गए। मुझे ऐसा लगता है अब आप ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए कि इतनी पब्लिक है, किस किस को मारेंगे। उनके लिए कौन सा मुश्किल है, जो ज्यादा वैसे वो बाकी पब्लिक तो सड़कों पे करती है ना। हमारे जैसे जो इंडिविजुअल बैठ के कहीं कर रहे हैं ना वो हाँ ज्यादा उसमें आते हैं रेंज में। आप कुछ कहने बिल्कुल लगी ऐसा थी? ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, वाकई ज्यादा रेंज में आते हैं। मैं यही कह रही हूँ। खैर मैं तो डेली बेसिस पे जीती हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं कि मैं कल होंगी कि कल मेरी फोटो पे हार लगा होगा, पता नहीं क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जब तक हाँ, सांस आ रही है सही है, जिस वक्त उड़ाना होगा तो मिनट भी नहीं लगेगा और पता लगेगा कि सिर्फ एक छोटी सी खबर बन के रह जाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन सर बोलना फिर भी चाहिए, मेरा ख्याल है लोगों को बात बात चाहिए। करते रहना चाहिए। लेकिन आरज़ू जाने से पहले वो कैमरे का ज़रा कुछ कर देना भाई। वो मैं आपको कल ही भिजवा दूंगी, आप मुझे एड्रेस तो भेजे मुझे पब्लिक लिख रही है कि प्लीज लाहौर जाओ और सर को कैमरा देकर आओ उनके शोज के लिए, और वो मैं बिल्कुल जो है वो आपको भिजवाऊंगी। और लेकिन सर आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस जरूर भेज दें। मैं अभी वोट करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बिल्कुल खैरियत से आप रहिए आपकी और ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप आएँ अगली बार जब भी तो लाहौर में हमने मिलना ज़रूर है हमारी तरफ जरूर से, ठीक जरूर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल जरूर आऊंगी। थैंक यू है? सर, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। आरज़ू। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।